some change in schedule. This lecture will go up to 1 p.m. and we will have lunch at 1 p.m. and lab session will start at 1:45 to 3:30. 3:30 we will have tea, and at 4 to 6 there is the lecture of Aditya. So be present, all of you, in the Aditya's lecture. And same information for online participants also. So now we will have lecture up to 1 to 1:45 lunch, and 1:45 to 3:30 hands-on session, 3:30 tea, and at 4 to 6 we will have the lecture of Aditya. Alright, welcome once again. This is Kamlesh. So, I will be starting the next session that is actually on the very similar lines. Professor Agrawal has talked to you on the sequence modeling, and essentially after sequence modeling my topic actually revolves around the same thing. So you can just see that what is the difference and what is the thing. Similar kind of topics is again going to be talked in this session also. Okay. Try to interact, try to understand what it is. So can you please open the slide, please? Where is the slide? KTRI.in on the same slide, same slide. Can open karo, KTRI.in. My website is KTRI.in/TALK talk/EBT03. Should I write it here? Sorry, keyboard use Here is the forwarding. Yes, sir. KTRI. KTRI.in, TIWRI.in. Yeah, the same thing. Put in 3. 01, put in 03. 03 dot. I think there is something else. What is this? Something coming in before that, na? HTTP, just take that part. Okay. So remove this place. I sorry, PPT 02, not 3. Yeah. I have given only one talk. Sequence modeling with RNA and LSD. Okay. Full screen, please. Yes. Make it full screen. Alright. ये तो बैक से इधर आ जाओ. Yes, करोगे. You can get. आगे उसकी काम पड़ेगा ना. नीचे सर. Alright. Okay. A very good morning, everybody. How are you feeling? Energetic? Huh? You got the tea? So you are sweet? Not looking energetic. Feeling energetic, but you should look also. Alright, so in this session again we are going to talk about the similar line of thought. So, so the problem, I think this talk is going to be very light. Take it very light. So it is just a kind of discussion between me and you.
and I wanted to pose you a small problem. So let's assume that I have developed a computer system, and from which I can ask that should I, there is a question, whether I should go to see a movie or not. Let's assume that there is new movie released, and to this system I can ask this question, should I go to see this movie or not? It can give me an answer, okay? So how should I make this? What should I put into the system? I put that whether what is the title of the movie, who are the actors, and what, where it is the PVR or Sorry what? to interrupt, but you haven't shared the screen. I have not shared the screen. Okay. Thank you. Please asking. So I am very happy to hear you. Can you tell me your name, please? Can you please tell me your name? Yes, sir, it's Karthik. Everybody please clap for Karthikeyan, because it is very important thing that he has done. So this is actually required. So every time, whenever I am speaking, you please keep stopping me, okay? Because otherwise, look, I am a little easy speaker, okay? Next speaker is very dangerous. So if you, Aditya Nigam, he would be talking to you at 4. So at that time, I think you must stop him, otherwise he would take you till 9. Okay? As I am telling that it is going to be 6. But session can go till 9 and you would also not leave. Okay? The style of teaching is such that you not leave. So this is very important. So you can think that it is a way of practicing that how you would stop Aditya. Okay? So once he told me कि अगर क्लास में आ गए तो पढ़ाए बिना तो भेजूंगा नहीं. It's not possible that you are in his class and you don't understand the topic. Okay, so please do like that. On lighter note. Okay, every time it becomes bad. So now can you see my screen? Hello, can you see my screen? Online participants? Yes, sir. Great. All right. So I have. Let's assume that I want to develop a system that is such that if I can ask from that system that should I go to see the movie or not. So what it should consider? It should consider that what is the movie, who is the director, and who are the star cast. If it is Amitabh Bachchan movie, definitely I am going to see that. Something like that. People have that. So my preferences. That's like who movie I like, what kind of people my friends are, and what movie they have seen. They have rating. Multiple things you can tell them. Using that, let's assume that I have developed a system. There is a new movie released. I ask, should I go to see the movie? He says yes. Okay, I can go there. Next day, I can ask from the system, should I go see the movie? What the system would say? Let's assume the answer was yes. What the system would say? You already seen. Right? It would say yes. Because system can say yes or no. He would say yes. I would again go and see the movie. Third day, I would ask what it would say? Yes. Fourth day, then how many times I have to see the movie? Have you seen this? Let's say when I was a kid and you will also maybe have experienced that if you go to your mom and tell mom, I want ice cream. What she says? What she says? No. What she say? No. So in the morning you ask mom, I want ice cream. He says no. Then you ask him at the time of lunch, man, I need ice cream. He says no. Then evening you say, he says no. In the night you say, yes. Can you see this? In our real life, what happens that we see that what we have done earlier, but our models are, our actual models are, the machine level ML models are such that they don't see that what I have done earlier. Okay, so this has a problem. It does not consider that what he has done earlier. This is a very basic problem with all the kind of systems. Okay, every time the system would give me the same answer. How many times I can see the movie? Basic ML model has a problem
that they don't see that what they have done earlier. So how can I bring this component to the machine level ML models so that they also remember that what has been done earlier. So this is called the sequence modeling. In our life, lot of sequential data actually we encounter, and actually we want to do 4 different kind of problems. We want to solve 4 different kind of problems with them. One problem is about the sequence predictions. Sequence prediction means if I know that these values, what is the value going to be next? For example, in the stock market, I know that what were the earlier values. I want to predict that what is value going to be next. Weather forecasting, if I know that these days it is raining, so then I think that next day is also going to be raining. Product recommendation, very interesting topic. Okay? So we do very different kind of things over here to find out that what product I should recommend to a person, because it can be dependent upon not only on your preferences but other preferences as well. Okay, let's assume that there is a viral song coming, everybody is listening to that song, appreciating, but you have not heard about that. So it sees that other people are seeing, then he tells you. And it may also be possible that if you have recently purchased a cricket bat, it can suggest you that you purchase this ball also. Okay, so based on your history, based on how other people are doing, it can be suggested to you. The product recommendation is a very interesting idea. And then sequence classification. There are different kind of sequences. I want to classify them. For example, DNA sequence, you can tell that whether there is some problem that particular person has or not, what kind of life he is going to have. Anomaly detection. Somebody comes somewhere, behaves in some way. So based on his actions, I want to tell that whether his actions are good or bad. Okay, you just see that whether the person is right or wrong. Sentiment analysis. The professor has talked much about that. That I want to tell that whether it is a positive sentiment or negative sentiment. Text generation. How I want to generate the text. So I also talked about that. That if and one word I am telling that what is the text word? Music generation, image captioning, and then sequence to sequence translation. So text summarization comes into that, and language translation comes into that. Something written in one language, I want to write in another language. It is a kind of comprehensive list where actually we want to do different kind of things with the sequences. Sir has rightly pointed out that one of the major challenges is this, that I don't know that what is the size. Okay, input generally the model takes this fixed size input, but this kind of model does not have the fixed size of input, so we have an issue. And also there is one more thing I think I should bring in your attention, that there are something called long-term dependencies. Okay, and you can take the idea from this particular sentence. Here is a sentence: Agra is a great place. If you go there, you must visit dash. What it is? Taj Mahal? Everybody? Sure? It should be Taj Mahal. But but Taj Mahal and Agra, how distance they are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 words. Okay, there is 11 word dependency. And you feel this dependency because if I change this Agra to Delhi, it becomes what? Huh? Yeah? NIT Delhi. If I put it France, you can tell what it should be. So there is a long-term dependency. So we must understand this. That this is again, there are 2 different kind of problems. That our models have the problem that they actually generally machine learning ML models take the fixed size thing, and therefore we have to solve this particular problem. So how can I solve this problem? Let's assume that my size is not fixed length, so what should I do? So one approach could be, you take the fixed length, okay, forget about whatever come earlier, just take the 10 sentences, whatever is like that. But again, as we have just discussed, that if we do that, if you consider only fixed length, the first one, we are unable to model the long-term dependencies, okay? Another idea is very good, and this idea is called bag of word. Bag of word, do you know? It's a kind of representation that whether this word is there inside the sentence or not. Look, everything is not important to us. Even if we speak the sentences, the is, am, or the, that, comma, semicolon, etc., they're not important. There are many such words. What are important words? So if I note down these important ones, okay, these are the important words
for understanding my thing. Okay, I can say that dictionary also. Everybody has a dictionary. Okay, I have a different dictionary, you have a different dictionary, and let's assume that safely we can assume that this is a fixed size. So if I only speak 10,000 word, so I can create a 10,000 size vector, put everywhere 0. If I say any sentence, find out what words has been said. So for that word you put 1. Now whatever I can speak, whatever length I can speak, I'm not going to beyond this. So just use that thing, put into this particular vector, convert this to particular vector, and then you can use that. This is a very good solution. Okay, this solution is called bag word. Again, this is a very good solution, but it has very serious problems because you are actually destroying what? You are destroying the sequence. Whatever way they can come. And sequence was the most important thing, and you have destroyed that. Just see these two sentences. David is good at math, but is bad in science. So he is good in math, bad in science. But if I change it, David is bad in math and good in science. I have just changed 2 words. Whether their representation is different? Different? No. Representation, bag of word representation is same because same word are used, but totally different sentences. Okay, so it is becoming a challenge. So you see the problem. We have to deal with the variable size of input. We have to maintain the sequence order, keep track of the long-term dependencies, and share the parameter across the sequences. Okay, so for that, Sir has talked about that we have actually very interesting architecture. That's called the RNN. Raj, you are going to teach them this part today. So RNN, you are going to see this in your lab. Okay, so may I request everybody to clap for the Rituraj. I like it. He's a wonderful and very humble student, and he happens to be a proud guide of Rituraj, but he is actually very equally good as me. So he is a very good student, and I think you will be getting a lot of insights into the actual how to implement the model with that. Okay, I could not introduce him because I was not there on the first day, but this I got a chance to just to introduce him to make the things lighter. All right. Okay. Okay. This is what the model is generally. Okay. This is the model. This model has. This is a feed forward network. जरा देखो इसको ध्यान से. At the time t, I provide some input to this, and after some time, because एक unit तो लगेगा ना processing करने में. अगले minute में I can see the output. At time t plus 1, I can see what is the output. ये समझ में आ रहा है? बहुत simple है. I am going to give some x I am going to provide, y I am going to get, y is the output that I am going to get, but y I would get at the time t plus 1, not the same time. Same time I cannot get because ऐसा क्या जैसे दिया तैसे कैसे मिलेगा? एक टाइम तो देना पड़ेगा ना प्रोसेसिंग का. Let's assume 1 unit of time processing I am given. This model can only take what? 1 unit. Can I modify this so that all these things can be handled with all these requirements can be handled by this model? And this is what it is. I am going to add one more neuron that is actually hidden neuron to the hidden layer. एक add कर दिया. I am going to connect this with everything else, everything here. Okay, I am going to connect this. And at the time taking output, at the time when I take the output, वो अभी क्या इसका तो कोई काम नहीं है. Next time जब मैं अगला इनपुट दूंगा, at that time this thing would also be going inside here. This is the small change I am going to do. ये थोड़ा चेंज समझना आसान मतलब जरूरी है यहाँ पे कि what I have did, I have created one more neuron here, but ये independent कुछ नहीं हो रहा है इसका, ये बाहर रखा हुआ, ठीक है, ये बाहर रखा. इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगली बार जब हम दूसरा इनपुट देंगे, एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू टेक दिस वैल्यू एंड पुटिंग इट इनसाइड. ठीक है, तो उस समय चूंकि यहाँ पे अब ये इनपुट में आ गया, इनपुट में ये था लेकिन ये भी इनपुट में है, ये सारे के सारे इससे कनेक्टेड हैं, तो ये जो आउटपुट है उस पर भी डिपेंडेंट हो जाएगा. डू यू सी दिस? In the next time, this output is going to be also dependent upon this
न्यूरॉन आल्सो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि let's assume that you wanted to find out what is the output at the time t plus 1. So 1 मिनट पहले जो इनपुट दिया था xt पे वो आपको चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे. But to get this output input is also required. How can you get this input? So t minus 1 में जो इनपुट दिया था उससे ये कंप्यूट हुआ था, So you can connect this thing to here. What does it mean? That this output depends upon this input and this input also, because you can see that connection is there. So it is also dependent on this. Yes or no? But again, this you cannot compute until this value is also available. Okay? This value was available when the previous value was provided. At that time, whatever you have computed. So you can unfold it in the time. So this is called the unfolding of RNA in time, and so on. By this you can see that output is dependent upon all the things that you have given to the network. And my model is fixed size. Very interesting idea. Okay? Very interesting idea. So this is how the RNA is usually made. RNAs can be used in 4 different kind of settings. The first setting is this, where you provide something to it and it is going to give you the output. Okay, you give something and it is going to give you some output. One input, one output. Right? For example, if I want to generate a story, so I say there, I provide the there. Then system is telling was. I put was inside. It says A. I put A. King. His name was. It's a control issue. So somebody's name comes, what he did, everything. So every time you are going to enter one thing, you are going to get an output as a one thing. This structure says that there is only one RNA is required. You keep feeding, getting output. This is the second setting, where you provide one time you provide the data, and immediately you get some output. In next point, ये जो है ना next time है, okay, ये 3 नहीं लगाए गए. अगले मिनट में वही कुछ और भी देगा, तब तक देता रहेगा जब तक इंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता. इसका एग्जांपल है, I provide an image to this system and it is going to give me a description. So कैसे description है? बटन दबाते रहो, एक के बाद एक वर्ड आता रहेगा, जब तक इंड ऑफ लाइन नहीं आ जाता तब तक मैं उसका आउटपुट लेता रहूँगा. It take keep output until end of line comes. ठीक है ना? एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट. ये अलग अलग टाइम पे है, नॉट द सेम टाइम. अगेन दिस इज डिफरेंट थिंग, जहाँ पे बार आप इनपुट देते जा रहे हो, आउटपुट नहीं है. आउटपुट लास्ट में आता है. क्या है? सेंटेंस. जो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है ना? सेंटेंसेस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, है ना? काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं. नॉट दैट इजी टू टेल. फॉर एग्जांपल कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है. नॉट इज नेगेटिव वर्ड. किसी भी सेंटेंस में नॉट आ गया तो मैं कहूँगा कि वो नेगेटिव सेंटीमेंट है ना? लेकिन पीपल से इन अ वेरी डिफरेंट वे ना. इट इज नॉट गुड टू टेल दैट फूड इज बैड. अब क्या, बैड भी आ गया, नॉट गुड भी आ गया, बट ये तो अच्छी बात कह रहा है. Sentences are very difficult, okay? Especially Hindi is very difficult, okay? There is something called wala, okay ना? चाय वाला मतलब कौन? हाँ? बोलो. चाय वाला मतलब? टी सेलर, not prime minister, okay? घर वाला मतलब? Doesn't mean the husband. घर वाला मतलब लेडीज के पर्सपेक्टिव में उसका हस्बैंड. ओके. दिल्ली वाली गाड़ी मतलब? चलो अच्छा, भोपाल वाली गाड़ी. अब दिल्ली में तो नहीं सोच पाएंगे. भोपाल वाली गाड़ी मतलब जो गाड़ी जो भोपाल जाती है. अजीब प्रोडक्ट है. वाला से मतलब ही नहीं निकल पा रहा है. वाला का मतलब क्या निकालूं मैं? So
So sentences are very complex because sometimes we add something and the context completely changes and बहुत सारा different it's a language that's why it's very difficult to understand. Yeah, you are feeding one by one word and then at the end you are going to see that whether it is positive or negative. And again, this kind of architecture, for some time you are sending and telling something and after some time the result start generating and actually then it takes some time to generate. Generally happens in language translations. Okay, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 2-3 मिनट लगेगा, 2-4 सेंटेंसेस में बोलूँगा, उसके बाद जनरेट करना शुरू करेगा और जब मैं रुक जाऊँगा उसके बाद जनरेट करता रहेगा, है ना? तो इस तरीके से there are 4 very general settings जो इसके अंदर होती हैं. बहुत ही हायर लेवल से देखा जाए तो आप इसको एक क्लास की तरीके से देख सकते हैं कि ये एक RNN एक बॉक्स है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं. अब इनपुट देते हैं ट्रांसफॉर्म होगा, तो मैंने सोचा कि इनपुट का ट्रांसफॉर्म U है, U मल्टीप्लाइड बाई X. पिछले वाला स्टेट जो कि वो उसके अंदर जा रहा था वो कहा SN-1 मल्टीप्लाइड बाई W, उसका कुछ वेट होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे. इसके बाद इसके ऊपर कोई आप लगाओगे, उसके आप कोई tan लगाओगे या कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगाओगे. सो अगर मुझे अगले स्टेप में जाना है तो क्या करना पड़ेगा कि मेरा अपना स्टेट को W से मल्टीप्लाई करो और जो मेरा इनपुट है U से मल्टीप्लाई करो, उसको एक्टिवेशन लगाओ, अगला स्टेट मिल गया मेरा, मैं स्टेट अपडेट कर दूंगा. If you need the output depends only upon state. So जो मेरा स्टेट है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें आप फिर एक सिग्माइड लगा दो या कोई एक्टिवेशन लगा दो, उस तरीके से आउटपुट ले लो. तो ये है इसका बेसिक मॉडल. ठीक है, RNN का बेसिक मॉडल. उसमें कितने तरीके के पैरामीटर हैं? 3 तरीके के पैरामीटर. कौन से? U, W और V. एक आउटपुट से रिलेटेड है, एक इनपुट से रिलेटेड है, दूसरा स्टेट ट्रांजिशन से रिलेटेड है. ऑलराइट, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मान लीजिए मैंने एक सिस्टम बनाया जिसको मैंने H दूंगा, E बताता है, E बताता हूँ तो L देता है, L देता हूँ तो L देता है, फिर L देता हूँ तो O देता है. अरे ये कैसे L देने को L देता था, L देने को O कैसे दिया? क्योंकि दूसरा L है, पहला L और दूसरा L क्या है? RNN होने के कारण स्टेट बदल गए थे. That's why it is a different L. So output overall क्या हुआ? H E L L O. Hello. Understand? So I want to develop this thing. एक ही चीज है, ये टाइम के साथ है, समझने वाली बात. This is with respect to time. So this is only one thing. I want to find out what should be the right parameter of this U, W and V so that I can find out the right correct thing. So we have seen that. Okay. What we have seen, that next stage is computed by this formula and the output is computed by this formula. So okay, system is giving. How can I train it? System is giving some output, and I know that what should be the right output. I know that because at the time of training I know. At least at the time of training I know what should be the right output. So the difference between the output that are given here and actual output, I can compute using those two values. I can compute the loss. How can I compute the loss? Difference of these two values of square. Okay, L1 loss, difference of these values, L2 loss, or any other kind of loss you can apply and find out. So what is loss here? What is loss at the time 2? What is loss at the time 3, time 4, time 5? So total loss is going to be loss. Every time there will be loss, that is JT. And over the period of time, you just find out the summation of that loss. And now your objective would be to train and find out what are the parameters and what are the parameters that can reduce this particular value. This is what the training is. है ना, ये तो training होता है. I do something so that this J value is reduced. I change the parameter in such a way that the J value is actually reduced. Okay. Okay. So let's assume that I wanted to find out the parameter with respect to W. W, U and V तीन थे ना मेरे पास. Let's assume I want to find out a specific W. सीधी सी बात है भाई, W का डेरिवेटिव निकालो उस वाले W के रिस्पेक्ट में, और W की अभी जो करंट वैल्यू है उसमें से अल्फा टाइम करके घटा दो. कितने लोग समझ आ रहा है ये? कोई भी एक्सप्रेशन है उसको आप पार्शियल डेराइव करो उस वाले पैरामीटर के रिस्पेक्ट, और पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो उस W की वैल्यू पे.
ये बताता है कि अगर आप इतना बढ़ जाओगे तो मैं भी बढ़ जाऊंगा। आप घटाना चाहते हो तो आप जा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस आप अल्फा डब्ल्यू, क्योंकि आप मिरर को घटाना चाहते हो। अगर आप बढ़ाना चाहते होते तो प्लस लगते हैं। डेरिवेटिव मतलब स्लोप। स्लोप आपको पता है, स्लोप के डायरेक्शन में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, स्लोप के नेगेटिव में जाएंगे तो आप नीचे जाएंगे। तो सीधी सी बात है। अब इसका डेरिवेटिव निकाला कैसे जाए, आई एम नॉट गोइंग टू दैट मैथमेटिक्स। ये पूरा थोड़ी देर पहले मैंने कहा, समेशन ऑफ द थिंग था। समेशन जो है ये मल्टीप्लिकेशन टर्म में आ जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर हम चेन रूल लगा सकते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूट कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा सा टर्म आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू दैट मैथमेटिकल डिटेल, इट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन टर्म आता है, और अभी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अकेले इसका प्रूफ ही एक सेशन से ज़्यादा लेता है। लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि जो बहुत सारे टर्म का मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेनी टर्म्स, एवरी टर्म इज बाउंडेड बाय सम नंबर। एक कांस्टेंट से वो छोटा रहेगा, इसका प्रूफ किया जा सकता है। अगर वो कांस्टेंट एक से कम है, कांस्टेंट है तो एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है। एक होने का कोई मतलब नहीं है। एक होने से छोटा क्या एक नहीं हो सकता? देखो, वी एक्चुअली टॉक इन टर्म्स ऑफ ना नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमको लगता है 1 2 3 4 नंबर होते हैं। एक्चुअली 1 2 3 4 नंबर नहीं होते हैं। रेंज ऑफ नंबर होता है, उसके बीच में एक भी एक नंबर है। मैं कहूँ 1 से 2 के बीच में कितने इंटीजर है, मान लो 0 और 1 के बीच में कितने हैं? 1 से 2 के बीच में देखो 1 आता है, इसलिए 1 से 2 ले रहा हूँ। 0 से 2 ले रहा हूँ, 0 से 2 के बीच में मैं देख रहा हूँ। 0 से 2 के बीच में 1 आया, लेकिन 0 से 2 के बीच में नंबर कितने हैं? हाँ, इनफाइनाइट नंबर है। तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी कि आपको 1 मिले, क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी? 0, बहुत कम, नहीं 0। कोई भी रेंज ले लो, कोई भी रेंज ले लो, उसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इसका प्रूफ है डायरेक्ट, आप जानते हो। फिर कोई भी आप, इफ यू पिक एनी रेंज, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इनसाइड दैट। ओके, सो बड़ी मुसीबत हो गई। इनफाइनाइट नंबर है और एक पक्का नंबर निकालना बहुत मुश्किल हो गया। यही चीज़ प्रॉब्लम पहले भी आई थी। कल वाली क्लास में जब हम देख रहे थे ना, कि जब हमने कहा था कि हम बहुत सारे लेयर लगा देंगे, तो लास्ट वाले लेयर को 1 चाहिए था। अब वो पॉसिबिलिटी तो चूंकि फ्रैक्शनल है वेट, उसमें 1 को मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर आप इसके बीच में कोई नंबर सैंपल करें, एक नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0। तो एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, वो भी हो सकती है। मैं आपसे सवाल पूछूं, कोई इवेंट है ऐसी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी? आप कहोगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, 0 और 1 के बीच में एक नंबर निकालो, कोई भी नंबर निकलेगा, उस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? और वो आ गया। 0 वाली भी प्रोबेबिलिटी वाली चीजें हो जाती हैं। आप देखो ये चीज, अब बाय द वे मैं करेक्ट कह रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ मजाक के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी बातें मजाक के लिए करता हूँ, लेकिन ये नहीं है। 0.9 देखो, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, मान लो 0.9 है, और 0.9 का अगला 0.8175659539534838, देखो 4-5 बार टर्म में मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 0.39। सो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट है, ऐसे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट है कि अगर आप थोड़ा सा उसको 0.9 बढ़ा दो ना, तो ये 1 होगा, 1.5, फिर 1.29, 0.3, 0.25 फटाक से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा, इसको ट्रेन करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे RNN को ट्रेन करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस चेन रूल, दिस टर्म बिकम्स वेरी लार्ज and therefore vanishing and exploding gradient problem comes, and therefore we cannot treat it. बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन बहुत कुछ नहीं है। वन सोल्यूशन इज दिस, दैट इफ द सी, इफ आप देखते रहो कि अगर ये जो मल्टीप्लाइड टर्म है, अगर वो एक निश्चित वैल्यू से बड़ा हो जाए या निश्चित वैल्यू से छोटा हो जाए, तो वो आप फिर वही छोटी वैल्यू लो, उससे छोटी जाके मत लो। दूसरा तरीका होगा ट्रंकेटेड बैक प्रोपगेशन, जिसमें आप कहो कि लास्ट की कुछ वैल्यूज इसे मैं कंसीडर करूंगा ताकि आप आगे बढ़ सको। और अगला तरीका है LST, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोई सवाल? अभी तक सबको समझ में आ रहा? कुछ नई चीज पता चली? नहीं, सर ने सारी चीज बताई थी, ठीक है।
अगला चीज देखता हूँ मैं। सर ने ये भी बता दिया था LSTM, है ना। LSTM उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। ये जो ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करता है। कैसे करता है? LSTM इज नॉट, सबसे पहली चीज है कि LSTM इज नॉट ए सिंगल थिंग, इट कंटेन्स 4 स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क सर्किट। कितने? 4 अलग अलग सर्किट बना के रखता है। 4 अलग अलग न्यूरल नेटवर्क सर्किट्स हैं और वो अपने आप लर्न करते हैं कि व्हाट इज द राइट पैरामीटर अलग अलग काम को करने के लिए। अब जैसे सर बता देते वही कहानी है कि मेरे पास कोई पहले मेरे पास कोई हिडन स्टेट है, वो हिडन स्टेट अपडेट होता है, ठीक। उसी हिडन स्टेट से मेरा आउटपुट आता है। ये मेरा हिडन स्टेट है, इसी हिडन स्टेट से आउटपुट आएगा। अगर मैं आउटपुट चाहूँगा तो हिडन स्टेट को ले लूँगा, उससे मैं अपना आउटपुट निकाल लूँगा। हिडन स्टेट जो पहले था उसको मैंने अभी कोई इनपुट दिया, मतलब एक के बाद एक जो वर्ड्स आ रहे हैं ना इनपुट वाले, वो यहाँ से ऐसे जाएंगे, पिछले हिडन स्टेट के साथ कंबाइन होंगे और इसके बाद कुछ कंप्यूटेशन होगा और अगला स्टेट मेरा चेंज हो जाएगा और मैं ऐसे स्टेट चेंज कर लूँगा। हमारे पास जैसे सर ने कहा एक कन्वेयर बेल्ट है, आप ऐसे मान सकते हो कि एक और पैरामीटर भी है जो कन्वेयर है। उसमें क्या है कि एक वैल्यू स्टोर्ड है ना। वो वैल्यू ये बताती है कि राइट नाउ मुझे क्या करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तो, राइट नाउ मुझे क्या करना है। अब मुझे बताओ कि मान लो कि मेरे पास, देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अदरवाइज लिखने में ज़्यादा मजा आता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो ये बताओ मुझे कि मेरे पास एक वैल्यू है 10, ओके। मैं कुछ करके इसको बनाना चाहता हूँ 15, ओके। आई वांट टू मेक इट 15, तो मैं कैसे करूँ? कैसे करूँ? कोई तरीका बताएगा? हाँ, पहले तो एरर कैलकुलेट करिए। इरर? अरे 10 में क्या इरर है? नहीं, 15 से 10 में। 15 से 10 में इरर कहाँ से आ गई? 15 से 10 करना है मुझे, ठीक है। 5 डिफरेंस है, हाँ बताओ। फिर 5 ऐड कर दूँ? वेरी गुड। आपने कहा कि सर इसमें ऐड करो 5, ये 15 हो गया। कोई और तरीका? मल्टीप्लाई 1.5, ओके। मल्टीप्लाई करो 1.5 का मल्टीप्लाई करो और ये हो गया 15। और कोई तरीका? दोनों काम करना है मुझे। मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 का, तो ये बन जाएगा 5। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूं 10, अब ये 15 हो जाएगा, है ना। है तो बहुत सारे तरीके इसको चेंज करने के लिए, लेकिन इन तीनों तरीकों में जरा डिफरेंस देखो। पहला तरीका ये बताता है कि मैं जितना मेरे पास था उसमें मैंने कुछ और सीख लिया, आई हैव लर्न समथिंग, है ना। आई हैव लर्न समथिंग, दिस इज व्हाट द लर्निंग इज। 1.5 मतलब मैंने अपनी लर्निंग को इनहेंस कर दिया, है ना। जो हमारी लर्निंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इनहेंस कर दिया। कभी कभी होता है ना, आगे जो वर्ड आता है उसके कारण मुझे लर्निंग इनहेंस करना होता है। नहीं समझ में आया तो ये देखो कि अगर कोई सेंटेंस चल रहा है, बाद में फुल स्टॉप आया, क्या मतलब हुआ? कुछ ना भूल जाओ, नया शुरू हो रहा है, जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जनरली इसको इनहेंस की जगह फॉरगेट बोला जाता है, हाउ मच आई हैव टू फॉरगेट। और जनरली इसकी वैल्यू इसलिए क्योंकि फॉरगेट टर्म होता है तो कम होता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि पहले मेरी जो वैल्यू है उसमें मैंने कुछ फॉरगेट किया, मैं भूल गया पहले कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ लगता है कुछ कंपोनेंट डाउन करना चाहिए, तो 50 पहले मैंने कुछ फॉरगेट किया, आधा मैंने कम कर दिया, क्योंकि आगे जो बात कही गई उसके कारण मेरी प्रोबेबिलिटी उस वर्ड पे आधी हो गई। पहले जो मैं सोच रहा था कि ये वर्ड आने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी आधी हो गई। फिर कुछ और आया जिसके कारण मुझे नई चीज़ सीखने के लिए मिली, मैंने उसमें उसकी चीज़ को ऐड कर दिया, है ना। तो ये जो सेकेंड वाला मामला है, ये आपकी दोनों ही चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है। क्योंकि अगर आप ये वाला चीज़ चाहते हो कि आप जो है मल्टीप्लाई करो, तो ये वाली चीज़ को 0 कर देना। अगर आप ये वाला चीज़ चाहते हो तो यहाँ पे 1 कर देना, समझ रहे हो ना। तो ये जो दूसरा तरीका है, ये एक ज़्यादा जनरलाइज तरीका है। एक बात समझ गए,
तो ये जो मेरी वैल्यू है कि अभी करंट मेरा क्या चल रहा है, अगर इसको मुझे अपडेट करनी है नई वैल्यू के ऊपर, तो मुझे सी टी को क्या करना चाहिए कि सी टी माइनस 1 में कुछ मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए और कुछ मुझे इसमें ऐड करना चाहिए। ये दो चीज़ करना चाहिए। समझ में? उससे बड़ी चीज़ आ जाएगी, नई चीज़ आ जाएगी। फिर उस आधार पे मुझे अपना हिडन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ये मेरा स्टेट है। अगर मुझे अपनी हिडन वाली चीज़ को कंप्यूट करना है तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा करूं, हिडन वाली चीज़ को कंप्यूट करना है तो क्या करूं? एक चीज़ इसमें और आती है कि अगर कोई मुझे बता दे कि मेरी कितनी लर्निंग है, तो ये जो ऐड करने वाली बात है, उसमें एक चीज़ और आती है ना। ऐड कैसे करें? दो तरीके से ऐड होता है, आगे बढ़ाना और पीछे ले जाना। एडिशन में निगेटिव भी तो होता है। तो यहाँ पे मुझे एक साइन को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जो मुझे लर्न करना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है या नेगेटिव डायरेक्शन में करना है। ठीक, अगर मैं ये फार्मूला बना लूँ तो मेरा काम पूरा बन जाएगा, मैं आगे की तरफ जाने लगूँगा। इस फार्मूले को समझ जाओ, मेरा काम खत्म हो गया। ये फार्मूला समझ में आ गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं इसका मॉडल दिखाता हूँ, आपको सब कुछ सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ये बताओ मुझे कि साइन जो है कौन देता है मुझे, कौन सा फंक्शन मुझे साइन देता है? tan h की वैल्यू +1 से -1 होती है। कौन सी चीज़ वैल्यू देती है? अब वैल्यू यहाँ चाहता हूँ, अब जैसे ये तो निगेटिव नहीं हो सकता ना, अगर साइन कोई और दे रहा है तो ये वैल्यू तो निगेटिव नहीं हो सकती। इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा सिग्माइड, क्योंकि सिग्माइड देता है 0 और 1 के बीच में वैल्यू, है ना। और यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो अगेन इसके लिए मुझे चाहिए क्या? सिग्माइड। ठीक है, समझ आ गया? चले मैं इसको बंद कर दूँ। ओके, सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा सकता हूँ। Yes. अब देखो मैंने क्या लिखा। थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला लिखा था, सबको याद है ना? याद है ना? मैंने बेटा दिया है याद। अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ पे बैठे हैं जिनके पास कागज तक नहीं है, ऐसा क्यों है भाई? These students are very मतलब ये देखो, इट्स नॉट द मूवी। थोड़ा सा ये तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, देखो ऐसा है कि मज़ा नहीं आता है जब तक लिखोगे नहीं। ब्रेन जो है ना, न्यूरॉन, मैं आपका न्यूरॉन ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसकी जो एंड पॉइंट है आपके हाथ में है। कुछ लिख लो, कुछ भी लिख लोगे तो याद रहेगा। हमेशा कागज में लिखा था, कागज हो जाएगा, दिमाग में लिख जाएगा। If someone needs pages, I can provide. चलो कोई बात नहीं, चलो फार्मूला याद है ना? क्या था? पिछला स्टेट में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ, प्लस हम tan h लगाएंगे और इसके बाद जो है उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, यही तो करेंगे। तो आओ चलो, एक हमारे पास नेटवर्क है जो बताता है कितना फॉरवर्ड करें, कितना फॉरगेट करें, जो ये वैल्यू है उसमें कितना फॉरगेट करें, उसके लिए एक नया नेटवर्क बना दो। मेरे को दिमाग नहीं लगाना, ये जो वैल्यू है इस w, यहाँ पर मान लो कोई पैरामीटर है w फॉरगेट, और उसमें जो है ये दोनों वैल्यूज लो, उसमें दो, यही नेटवर्क बताएगा कितना फॉरगेट करें। ft की वैल्यू निकालेगा, ft को ct से -1 से मल्टीप्लाई कर देगा। कितना फॉरगेट करने हैं, ये फार्मूला सबकी समझ में आ रहा है? पिछले से याद नहीं करना, देखो अभी समझ लो। ये जो है बहुत सिंपल समझ में आना चाहिए। कितना फॉरगेट करना है, देखो वो जो फार्मूला था उसमें फॉरगेट कितना करना है मैं निकाल रहा हूँ। जो वैल्यू थी पहले उसमें फॉरगेट करना था, ct -1 के साथ कितना फॉरगेट करना है ऐसे निकालूंगा। ये समझ में आ रहा है? इसमें कुछ नहीं समझना। पिछली जो वैल्यू, अभी वाली वैल्यू, पिछली वाला स्टेट, इन दोनों को इस नेटवर्क को दिया, तुम बताओ कितना। देखो एक वेट है, वेट से मल्टीप्लाई किया, तुम बताओ वेट से मल्टीप्लाई, और उसमें बायस जोड़ दिया, बायस भी ट्रेन होके ही आया पैरामीटर है, ठीक है, बायस भी ट्रेन होके आया पैरामीटर है, तो हमको पता चल गया कितना फॉरवर्ड करना है। ठीक, ct इंटू एफ, एंड देन ct का एस्टीमेट है। यहाँ पे ct का एस्टीमेट क्या है, ये देखो, tan h से पता किया इसका डायरेक्शन कितना होगा, tan h से पता किया इसका डायरेक्शन कितना होगा, और हाँ, tan h से पता किया इसका डायरेक्शन कितना होगा, और कितना मैं उसमें जोड़ू घटाऊं, ये भी कोई दूसरा नेटवर्क ही बता रहा है। एक दूसरा नेटवर्क ट्रेंड है जो बताता है कि हमें अभी जो दिया जा रहा है उसके करंट जोड़ना घटाना कितना है, उसका डायरेक्शन कितना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर जोड़ देते हैं, अगला वाला स्टेट आ जाता है। फॉर्मूला समझ में आ गया? कितना सिंपल फार्मूला है ना, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है।
आई एम वेरी फास्ट, आई थिंक यू आर वेरी फास्ट। ठीक है, वो जल्दी समझ रहे हो आप लोग। ये समझ में आ गया? बोलो नहीं। ये फार्मूला सब लोग ध्यान से देखो। अभी थोड़ी देर पहले यही लिखा था ना कि जो पिछला वाला था उसमें टारगेट करना है यार हाँ, उसमें फॉरवर्ड इसमें जो है कितना टारगेट करना है और कितना सीखना है, उसके साथ डायरेक्शन को लगाना है। डायरेक्शन निकालने के लिए इसके ऊपर तो दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये न्यूरल नेटवर्क से निकल के आएगा। हमने कहा कि ये सारी वैल्यूज अप्लाई करो, न्यूरल नेटवर्क बता देगा किस तरह डायरेक्शन में जाना है। ये सारी की सारी 10 पैरामीटर्स। tan h लगाया था क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बताएगा। सिग्माइड लगाया था उसकी वैल्यू बताने के लिए। यही वही फार्मूला है। ct इज इक्वल टू, इस तरीके से ct कैलकुलेट हो गया। st कैसे कैलकुलेट होगा? st इज द आउटपुट। तो आउटपुट कितना होगा? यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया है जिसने यहाँ पे लेके tan h के साथ ct के साथ OT बता दिया कि हमारा आउटपुट क्या होगा। इस तरीके से आउटपुट कैलकुलेट हो गया। तो ये नेटवर्क सही से काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क है जिसको सीख रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और 1997 ओके, सो रेफरेंस है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी 1997। मैं बता रहा था ना ये सारी चीज़ें 1997 और उस समय बन चुकी थी, कोई यूज़ नहीं कर रहा था। 2013-14 में स्टार्ट हुआ फिर से इसको लेकर बहुत सारे पेपर इसके ऊपर काम करा। 12-13 के बाद से स्टार्ट किए फिर से इसके ऊपर, और इसके बाद ये बहुत दिनों तक ऐसे रखा रहा। अब बताओ अगला नेटवर्क कैसे बनाऊं? मैं इसको अच्छा करना चाहता हूँ। एज ए रिसर्चर आप सोचोगे कि मैं इसको अच्छा करूँ, क्या करूँ? कोई सजेशन? सब पोजीशंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, रिलेटिव पोजीशंस वगैरह। रिलेटिव पोजीशन से चेंज करके देखो कि क्या कम नंबर ऑफ पैरामीटर में काम चल जाता है। क्या जो इतने सारे थे उससे कम न्यूरल नेटवर्क से काम चल जाता है? वही काम मिल जाता है। ये अगला पेपर होगा, आप लोग बता रहे हो। ये अगला पेपर होगा ना कि हमारे पास एक वर्किंग मॉडल है, अब उसके साथ खेलो, उसमें चीज़ों को चेंज करो, अलग अलग तरीके से कनेक्शन लगाओ और देखने की कोशिश करो कि क्या कुछ करने से कम नंबर ऑफ न्यूरॉन से काम चल जाएगा। लेस कंप्यूटेशन करके ये काम कैसे कर सकते हो? फिर उन्होंने कहा सिर्फ 3 न्यूरल नेटवर्क में बनाऊंगा, उससे काम करा लूंगा सारा, है ना। इसका नाम है GRE। अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें है भी नहीं। ये सिर्फ वही बात कहता है कि मैं पिछले वाले स्टेट का और अभी वाले स्टेट का जो हमारे साथ कंप्यूट करके आया है उसका एक मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूँगा। वही ये कहता है कि ऐसा करो कि पिछले वाले स्टेट का और अभी वाले का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लो, और वो कॉम्बिनेशन में मतलब जैसे अल्फा टाइम जेड टाइम ये ले लिया, वरना ने जेड टाइम अभी जो हमने टेम्पररी कंप्यूट किया है, तो ये एक टेम्पररी वैल्यू निकालता है कि क्या वैल्यू मेरी होनी चाहिए, और कुछ इसमें नया नहीं है। सीधे tan h फंक्शन से इन्होंने कंप्यूट किया कि अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उसका एक फ्रैक्शन इन्होंने लर्न किया कि किस फ्रैक्शन में पिछले वाले को और अभी वाले को मिक्स किया जाए ताकि मेरी अगली वैल्यू आ जाए। ऐसा करने से लॉजिकली लेस नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस के साथ विद द लेसर नंबर ऑफ कंप्यूटेशन वी वर एबल टू अचीव द सेम काइंड ऑफ आउटपुट। 2014 पेपर 2014 में पेपर क्यों आया? क्योंकि बहुत दिनोतक पिछला पेपर जो है खत्म था, सो कोई यूज नहीं कर रहा था। इसके बाद फिर दूसरी टेक्निक्स है और हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द GRE। ओके, मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत छोटा सा कोड है जो मेरी स्लाइड्स के ऊपर है। अगेन ये सारा स्लाइड्स राइट नाउ अवेलेबल है आपके पास इसी वक्त, ठीक है। आपको वेबसाइट पता है ktiwari.in/ppt02.pdf डायरेक्टली अवेलेबल है। इसको लो, उसको देखो, ये सीधा कोड है। मैं इसको पाइथन का कोड है, इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको ये बता दूंगा कि ये कोड क्या करता है कि मान लो कि मैंने एक 5 डायमेंशनल वेक्टर को मतलब 10 साइज का वेक्टर बनाया, ठीक है, 10 साइज का वेक्टर रैंडमली पिक किया, और इसके बाद अपने दिमाग से छुपा लिया, किसी को बताया नहीं, तीसरी वैल्यू एज एन आउटपुट देता हूँ मैं। आप 5वीं दो, आप 8वीं दो, आप अपने मन में सोचो। आप रैंडमली 10 साइज का वेक्टर बनाओ और उसमें से हमेशा 6वीं वैल्यू या 8वीं वैल्यू या 7वीं वैल्यू निकाल के आउटपुट बना दो। अब ऐसे एक बड़ा सा डेटाबेस बना दो, देखो इस इनपुट पे ये आउटपुट, इस इनपुट पे ये आउटपुट, इस इनपुट पे ये आउटपुट,
और ये मैं आपको टेबल दे दूँ, मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ एक फंक्शन जो एक किसी नए इनपुट पे आउटपुट बता सके, आपको लगता है बना पाओगे? कैसे बनाओगे? अगर आपको ये पता नहीं है कि ये इनपुट आउटपुट यही है कि वो उसमें से एक नंबर उठा के बताता है, कैसे बताओगे आप? ऐसा सिस्टम कैसे बनाओगे? क्योंकि इन्फिनिट तरीके हो सकते हैं ना, 10 वैल्यू मैं दे रहा हूँ, उनमें से एक वैल्यू और एक वैल्यू आउटपुट है, वो उसी के अंदर भी है, तो क्या मतलब होता है? नहीं पता है ना, मुझे नहीं पता। मैं ऐसा एक बड़ा डेटाबेस बनाता हूँ, कितने 1000 सैंपल्स, ऐसे 1000 सैंपल्स क्रिएट करता हूँ और इसको सिस्टम को देता हूँ LSTM को ट्रेन करने के लिए, और फिर LSTM को दे करके मैं आउटपुट पूछता हूँ। ठीक है, ये उसका कोड है, बहुत ही सिंपल कोड है, अपने आप से आप लिख कर देखिएगा, जिसके अंदर जो है ये 10,000 एग्जाम्पल पहले क्रिएट करता है। ठीक है, 10,000 एग्जाम्पल क्रिएट करता है, ये हमारे द्वारा लिखा गया कोड है, कोई बड़ा नहीं है, आप अपने आप से टाइप कर लेंगे, 20 लाइन का भी कोड नहीं है। और इसके बाद 100 रेंडमली जनरेट के ऊपर टेस्ट करता है और इसकी एक्यूरेसी 100% आती है ना। तो ये अपने आप जो आपने मॉडल देखा उसके अंदर ही इस तरीके से चीजें हैं कि वो अपने आप LSTM जो है हमारा अपने आप उसको कर लेता है। ये इसका डायरेक्ट कोड है, आप चला के देखिएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये दूसरा एग्जांपल है, आई थिंक ये वेबसाइट पे आपको बहुत जरूर मिल जाएगा, शेक्सपियर लाइक टेक्स्ट। ओके, तो इसमें क्या है कि शेक्सपियर ने जो भी चीजें लिखी है उनको एक ही सिंगल PDF फाइल में लिखा, 4.4 MB की फाइल एक फाइल में बनाया और उसको 3 लेयर के RNN के थ्रू, जिसमें 512 हिडन नोड्स थे, उनके ऊपर ट्रेन किया। और ट्रेन करने के बाद क्या किया, रैंडमली कुछ इसको दिया, जैसे VIOLA दिया, तो उसके बाद उसने ये जनरेट कर दिया। अब ये बकवास है, इसका मतलब शेक्सपियर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे शेक्सपियर लिखता था उसी तरीके से ये भी आउटपुट जनरेट हुआ है। आप देख रहे हो, लेकिन इसने स्टोरी टाइप का कुछ जनरेट कर दिया है। ओके, ये देखिए कितना छोटा सा, ये छोटा सा कोड है और ये अब बड़े आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेटेक्स आप जानते हैं, एक लेटेक्स एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें कुछ लिखने के लिए आप उसका कोड लिखते हो। अगर उसका कोड ले लिया गया, और एक किताब थी मैथमेटिक्स की, किसके ऊपर थी, ये यहाँ पे अवेलेबल है ये कोड। सो ऑनलाइन लेटेक्स कोड फॉर एल्जेब्रिक ज्योमेट्री बुक, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री की बुक थी, उसके ऊपर ट्रेन किया गया, पूरा दिया गया, देखा कि वही इनपुट आउटपुट मिले। नेक्स्ट आउटपुट मतलब कैसे ट्रेन किया गया कि भाई ये दूंगा तो ये मिले, ये दूंगा तो ये मिले, ये दूंगा तो ये मिले, इधर को रिड्यूस किया गया, तो उससे ये जनरेट हुआ। ठीक है, अब आप इसको देख के क्या कर सकते हो, डज इट मेक एनी सेंस जो उसने लेवा लिखा है, क्या वो लेवा सच है? उसका कोई मतलब नहीं, बट उसको मालूम है कि पहले लेवा लिखो, इसके बाद प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ के बाद जो है यहाँ डॉट लगाना पड़ेगा जब प्रूफ खत्म हो, अगला वाला, है ना। इसके बाद किस किस तरीके से फॉर्मुलेशन है, इसको आपने इटैलिक्स लिखना है, इसमें कैसे लिखना, आप देखिए, तो आप जनरेट कर सकते हो। काफी स्ट्रक्चर वो पकड़ सकता है। अगेन ये एग्जांपल है जो लिनक्स के सारे जो सोर्स कोड है उसके ऊपर ट्रेन किया गया, लिनक्स का पूरा सोर्स कोड लेकर के उसके ऊपर आर्गुमेंट ट्रेन किया गया। इसके बाद वो रेंडमली कुछ जनरेट करता है। देखिए ये चीज उसने जनरेट करी, क्या आप कोड रन करेंगे? नहीं, कंप्यूटर हैक कर जाएगा, कुछ होगा, मुझे पता नहीं क्या करेगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो आप समझ पाएंगे कि बिल्कुल सही तरीके से ऊपर कमेंट लिखता है जैसे उसकी पूरी फाइलों में लिखा हुआ है। स्टैटिक वाइड एक्शन, ब्रैकेट शुरू होता है, बंद होता है, सेमीकोलन शुरू होता है, बंद होता है, कुछ ऐसे लिखने वाला लाइन। देखिए एकदम कोड जैसा लग रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, ये पूरी तरीके से बोगस कोड है। 2-3 चीजें इसको नहीं समझ में आई कि कोई भी वेरिएबल जो हम यहाँ यूज करते हैं उसको ऊपर डिफाइन किया जाना चाहिए, उसके अलावा ज़्यादातर चीजें इसकी सही है, कोड जैसा लग रहा है। ये है RNN की पावर। ये रिसेंट, बहुत रिसेंट तो नहीं है लेकिन CVPR 2015 का पेपर है, उसी PTE का, जिसने एक बहुत बड़ा डेटाबेस दिया और इसके बाद सारी चीज़ें शुरू हुई। उनका पेपर है, करपात्री, जो आपको मालूम होना चाहिए एड्रेस, और ये लोग जो है हमारे टॉप रिसर्चर हैं जो इसके हैं। तो इन लोगों ने ये मॉडल किया
कि RNN में जो पहली इनपुट है ना, जो फर्स्ट इनपुट है, वो मैं क्या लूँ, क्योंकि जब दूसरा इनपुट है तो पिछले वाले का कंप्यूट होके आया है। पहले वाला इनपुट क्या है, फर्स्ट इनपुट व्हाट शुड आई बी, इट ऑलवेज रिमेंस अ क्वेश्चन। ओके, तो उन्होंने कहा कि मान लो आपके पास एक इमेज है, आप उस पर एक CNN लगाया, आपने CNN आर्किटेक्चर लगाया, और उसके बाद जो है यहाँ से उसका पीछे आगे क्लासिफिकेशन किया और ट्रेन कर लिया। ट्रेन करने के बाद की सही क्लासिफिकेशन देने लगा, उसके बाद आप इमेज डालो और 20 से काट लो, तो आगे वाली चीज़ें जो थी वो हटा लो, बीच का जो आउटपुट था वही आउटपुट लेकर के यहाँ पे दे दो। तो एक तरीके से ये जो बीच वाली चीज़ है इसका फीचर है। ये चीज़ जब आप इसमें इनपुट कर देते हो, यानी आप जो फार्मूला था उसके अंदर जो यहाँ पे आप कंप्यूट कर रहे थे UT उसके अंदर आप ZT इस वाले की वैल्यू को भी आप एक बार उसके अंदर डाल दो, V मल्टीप्लाई टू V को आप Z ट्रांसफॉर्म पिछले वाले के साथ इसकी वैल्यू के साथ भी हर जगह पे आप उसको डाल दो स्टेट में। तो फायदा क्या होगा कि अब जो कंप्यूटेशन करेगा वो इससे भी कुछ लर्न कर लेगा। और इंटरेस्टिंगली आप देखो कि ये फोटो देने के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रा कहता है, स्ट्रा फिर हेड, हेड फिर तो स्ट्रा हेड, उसने बताया कि यहाँ पे स्ट्रा हेड ये आर्किटेक्चर है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हो कन्वोल्यूशनल मैक्स पूलिंग, कन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग, देयर इज नथिंग फैंसी इन दिस। पीछे निकाल के तो इसने इस तरीके से, तो इसको बार बार आपको चेंज करना पड़ता है, इसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। इससे कोई अभी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद आप बताते हैं इस एक्सपेरिमेंट से मेरा रिजल्ट अच्छा आने लगा और यही चीज़ आप रिपोर्ट करते हैं। सो यूजिंग दिस वैल्यू यू कैन डू ए काइंड ऑफ इमेज कैप्शनिंग आल्सो। यूजिंग सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन डू इमेज कैप्शनिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस सेशन। Thank you very much for your attention. Hope you enjoyed something and learned something interesting. Thank you. Any questions? First from the online participants. सर ने जैसा कि बताया है, हमने थोड़ा जल्दी छोड़ दिया आपको 12:40 से जल्दी, तो हम लोग जल्दी से लंच करेंगे और लंच के बाद हम लोग 2:45 पे शुरू करते हैं, 1:45 पे अगला सेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि आदित्य का सेशन 4 बजे से है, तो उसमें थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। इट इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। With that, thank you everybody. कोई सवाल हो बताओ मुझे। Have any questions? No question? But during the unfolding of R&D role, like last वाला जो एक नया हमने न्यूरॉन ऐड किया था, that is given as an input to the again another neuron here. Yes. But in the final neuron, it was not matching to the final output. नहीं, क्योंकि हमने फाइनल में तो अभी लास्ट वाला तो इनपुट है ही है मेरे पास, मैं उसके आधार पे कंप्यूट करूँगा ना, और पिछले वाले सारे आ ही गए, उनका डाइजेस्ट आ गया एक पिछली वाली वैल्यू के साथ। अब वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है ना, फ्यूचर वाले को, तो फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता मुझे, अभी राइट नाउ नहीं होना चाहिए। वो तब यूज़ होगा उन केसेज में जहाँ पे हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, अभी इसके बाद मैं इनपुट देना बंद कर दूंगा तब भी वो आउटपुट देता रहेगा, ऐसे केसेज में फिर वो यूज़ होगा। ठीक है, डन। थैंक यू once again. Thank you.